We'll start this chapter, that is chemical kinetics. Chemical, we are dealing with chemistry here, and kinetics, as you know, has come from Greek word known as kinesis, so which means movement. So here we'll be studying about the movement, or what we can say rate. Rate is the what to say, it's like movement. When you do movement, at which pace you are moving is known as rate. Okay, do you think all chemical reactions occur at a same rate? I don't think so. Some reactions are very, very fast and occur almost instantaneously. As you can see, most of the ionic reactions, for example, the reaction which is being given as an example here, you know that this reaction occurs between ions, and you can obtain the reactant as soon as you bring them close, like when you are mixing them together. As soon as you mix them, you can see the changes. And this reaction can occur very, very fast. How much? Almost like this, 10 to the power minus 16 to 10 to the power minus 14 seconds. And these reactions are known as fast reactions, or we can tell you that these reactions are ionic reactions because they just happen instantaneously. But some chemical reactions, as you know, may take several months. For example, you have studied this example everywhere, every time, that is rusting of iron. This is very, very slow reaction. So the measurements at which these chemical reactions are happening, at the rate of this chemical reaction. So this branch of chemistry which deals specifically with the rate of the reaction is known as chemical kinetics. So what is chemical kinetics? It is the branch of chemistry which especially deals with the speed. ठीक है, स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, किस स्पीड से होगा. और जहां हम स्पीड की बात करेंगे तो वहां पे आपको पता ही है, हम टाइम टेकन जरूर कंसिडर करते हैं. दैट मीन्स कि स्पीड जब हम लेंगे तो व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर दैट रिएक्शन टू अकम्प्लिश व्हाट इट वांटेड. Okay, now we'll learn about the scope and importance of chemical kinetics, means why we are studying this, why we need chemical kinetics, why we need to study this branch. As you've already studied in class 11th about thermodynamics. And what did you study in thermodynamics? That what is thermodynamics? Thermodynamics actually tells us the feasibility, whether this reaction will happen or not. That is being told by thermodynamics. And then we studied one more lesson, that is ionic equilibrium. If you remember, in that ionic equilibrium, what we studied, it is the extent till equilibrium is attained. That means किस एक्सटेंट तक, कहाँ तक ये रिएक्शन जाएगा, और जाके उसका मेन मोटो क्या है, वेयर इट विल अचीव द इक्विलिब्रियम. तो जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा तब तक वो रिएक्शन चलेगा. तो किस एक्सटेंट तक जाएगा वो हमने कहाँ पढ़ा था, वो हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था. लेकिन अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वी आर नॉट फॉलोइंग दैट व्हाट इज हैपनिंग विद द feasibility. We are not understanding here, or we are not studying about equilibrium. We are studying about the speed of the reaction. किस स्पीड से, कितना टाइम लेके वो रिएक्शन हो रहा है. Okay, then one more question comes कि why we need, what is the application of chemical kinetics. So chemical kinetics is very important if we want to know कि suppose एक मेडिसिन है, कितना टाइम लेगी आपको हील करने में, कितना टाइम लगेगा उसको आपकी बॉडी में जाके उस एरिया पे अफेक्ट करने के लिए उस एरिया को जहाँ पे उस मेडिसिन को आपने डाला है जिस काम के लिए. फिर आपको कहाँ इसका यूज़ होगा, कि फूड में कितनी जल्दी वो फूड एक्सपायर होगा. तो आपको पता है कि आजकल कितने केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि फूड एक्सपायर ना हो. जितने भी फ्रूट जूसेस, जैम्स एंड रेडी टू ईट फूड है आपके, वो देखा ना शॉप में कितने कितने टाइम तक रखे रहते हैं, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जो उसके डिले करते हैं उस रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को. ठीक है, तो ये यहाँ पे काम करता है. एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज एक डेंटिस्ट है, उस डेंटिस्ट ने आपको एक कुछ फिलिंग करी है. अब वो फिलिंग कितने टाइम में बैठ जाएगी, सेट हो जाएगी, ये उसको पता होना चाहिए ना, तभी तो वो आपको बताएगा कि आपको इतने से इतने टाइम में ये सेट हो जाएगा. तो इस तरह से हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम केमिकल काइनेटिक्स हमें पता हो कि ये जो केमिकल है ये कितने रेट पे, या ये जो रिएक्शन है
ये किस रेट पे होगा. नाउ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हमें पता चल गया कि किस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे, उस रेट को ही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. ओके, सो नाउ विल सी व्हाट इज द डेफिनेशन हियर. The definition says the rate of a chemical reaction may be defined as the change in concentration of any of the reactants or any of the products पर यूनिट टाइम. अभी मैंने बोला ना एक तरह से स्पीड है, तो स्पीड का फॉर्मूला हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहाँ डिस्टेंस तो नहीं है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कितना टाइम लगेगा जब हम एक कंसंट्रेशन चेंज करेंगे रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, और उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या देंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट अपॉन द टाइम टेकन फॉर द चेंज. ठीक है, तो अब यूनिट भी होगी इसकी. तो व्हाट विल बी द यूनिट, सपोज चेंज इन कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन को हम किस में मेजर करते हैं, मोल्स पर लीटर पे. तो यहाँ पे आपका मोल्स पर लीटर हो जाएगा, और टाइम हमने सेकंड में ले लिया, तो मोल पर लीटर पर सेकंड, ये इसकी आपकी यूनिट हो जाएगी. सेकंड्स की जगह हम मिनट भी ले सकते हैं, तो ये एक यूनिट हो जाएगी. सपोज हम प्रेशर को यहाँ पे देख रहे हैं, गैसियस स्टेट में है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, तो हम उसकी कंसंट्रेशन में प्रेशर को भी इंक्लूड करेंगे. तो अगर हम प्रेशर में इंक्लूड कर रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका एटमॉस्फेरिक पर सेकेंड और एटमॉस्फेयर पर मिनट. तो एक एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज एक रिएक्शन है वेन वेयर ए इज कन्वर्टिंग टू बी, तो हम किस तरह से इसको पढ़ेंगे कि ए का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रहा है और बी का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रहा है. ओके, तो व्हाट विल से एवरेज, यहाँ पे एवरेज वर्ड यूज करेंगे. तो व्हाट इज एवरेज, कि आप इसको पूरे रिएक्शन का देखेंगे कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था कहाँ पे खत्म हुआ था. तो व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और एनी ऑफ द प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम ओवर अ स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि चेंज, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम इंटरवल इन्वॉल्व इन द चेंज, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है किसका कंसंट्रेशन, ए का. तो ए का जो कंसंट्रेशन था वो क्या हुआ था, वो डिक्रीज हुआ था. तो उसको हम लिखने का तरीका क्या है, देयर आर सम रूल्स विच वी हैव टू फॉलो. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी स्पीशीज है कंसंट्रेशन जिसका आप देख रहे हैं, इट शुड बी इनक्लोज्ड इन अ सर्कुलर स्क्वायर ब्रैकेट. ओके, so you have taken A, क्योंकि हम we are talking about concentration of A, तो we will take it in square brackets. तो and its concentration changed from A1 is the concentration of A in moles per liter at time T1, which is changed to A2 at time T2. Okay, so now A2 will be what? A2 will be smaller because concentration is decreasing. So here what will happen? A2 is smaller than A1. इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, हम इसको जब इस तरह से लिखेंगे A2 minus A1, तो यहाँ पे हम डेल्टा A करेंगे, because this is what? This is change in concentration, that is A2. It's going from A2 to, that is final concentration, to minus initial concentration. तो डेल्टा A आ जाएगा. And what will be the time required for the change? T2 minus T1, that is delta T. Okay, and since I've already told you A2 is smaller than A1, so rate of reaction is always expressed as a positive quantity. और जो rate of reaction है वो कभी भी negative नहीं होता है. rate of reaction is always positive. इसको ध्यान कर लेना, इसको mark कर लेना कि rate of reaction is always a positive quantity. So now this negative sign will be introduced here, and when this negative sign is introduced here, तो एक नेगेटिव साइन हमने ऑलरेडी लगा दिया है ताकि हमारा जब एवरेज आए ना रेट ऑफ रिएक्शन, वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा. इसीलिए यहाँ पे एक हमने नेगेटिव साइन यहाँ पे पुट कर दिया है, सो दैट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव. सेकेंड टर्म क्या होगी, बी. जैसे मैंने बोला था ना कि ए से कन्वर्ट हो रहा है बी में, तो ए तो था रिएक्टेंट आपका, ये रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और ये आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट आपका इंक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पे देखेंगे अगेन चेंज और यहाँ पे इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टाइम इंटरवल इन्वॉल्व इन द चेंज. तो इसी तरह से कैसे लिखेंगे उसको, सेम उसी तरीके से लिखेंगे कि जो बी है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देंगे, क्योंकि हमें बी का कंसंट्रेशन यहाँ पे मार्क करना है. डेल्टा बी मतलब चेंज हो रहा है, जो भी B2 माइनस B1 है दैट इज डेल्टा बी अपॉन T2 माइनस T1 दैट इज डेल्टा T. चूंकि डेल्टा बी पॉजिटिव है तो हमें यहाँ पे कोई भी साइन लगाने की जरूरत नहीं है. तो वी विल नॉट बी पुटिंग एनी नेगेटिव साइन हियर बिफोर डेल्टा बी, बिकॉज
रेट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, और यहाँ पे जो बी है आपको पता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट होगा दैट इज़ B2 वो बड़ा होगा और B1 छोटा होगा। चलिए यहाँ पे इसको देख लेते हैं किस तरीके से, हाउ विल रिप्रेजेंट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज फॉर दिस रिएक्शन A चेंजेस टू B, सो दिस विल बी लाइक डेल्टा A जिसपे माइनस का साइन लगा है और इज इक्वल टू डेल्टा B, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B, इसको जब हम इस तरह से लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। Now a very important concept that how we'll be writing, how we'll be making this equation. तो अभी इक्वेशन में हम फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं कि जिसमें सेम स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, यानी यहाँ पे 1 मोल ऑफ CO, 1 मोल ऑफ क्लोरीन, 1 मोल ऑफ COCl2, यानी इन सब के स्टोइशियोमेट्री सेम है, इसके कोएफिशिएंट सेम है। तो उनको कैसे लिखेंगे हम, उनको इसी तरीके से लिखेंगे, जो रिएक्टेंट्स होंगे उनके आगे माइनस लगा देंगे, वही माइनस डेल्टा चेंज इन CO अपॉन डेल्टा T, और इसी तरीके से माइनस डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा T। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट है तो कोई साइन नहीं लगाएंगे, मतलब प्लस ही है वो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ COCl2, और इसको हम इसमें बताया था मैंने अभी कि इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में डालेंगे, अपॉन डेल्टा T। तो यू कैन सी हियर माइनस साइन लगा दिया हमने, क्योंकि ये क्या था, रिएक्टेंट था, ये भी रिएक्टेंट था, इसके साथ भी माइनस साइन लगाया, लेकिन ये प्रोडक्ट था तो इसके साथ हमने माइनस साइन नहीं लगाया है। लेकिन ये कब है, ये हम इस तरह से कब लिखते हैं, जब सबके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर थे। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल चेक करते हैं, ये देखेंगे यहाँ पे भी क्या है, इसकी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 मोल ऑफ दिस, 1 मोल ऑफ दिस एंड 1 मोल ऑफ दिस। तो यहाँ पे भी हम एग्जैक्टली ये लिखेंगे, इसके आगे नेगेटिव लगाएंगे और इन दोनों के आगे कोई साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। लिखने का तरीका वही है, PCl3 को आप स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देंगे, PCl3 को, और उसके बाहर डेल्टा का साइन लगा देंगे अपॉन डेल्टा T का। ओके, बट व्हाट विल हैपन, जब आपकी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिफरेंट होंगे, तब जो लिखना है मेजर हमें वहाँ पे सीखना है उस चीज़ को। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है आपकी बुक में, N2 + 3H2 + 2 NH3। यहाँ पे रेशियो देखेंगे 1:3:2, ठीक है। यानी कि N2 जो है वो 1 मोल है, ये 3 मोल है, ये 2 मोल है, या इसका मतलब टाइम समझ सकते हैं। तो इसको समझने के लिए we'll just see the example here। चलिए समझेंगे इसको। As you can see, N2 + 3H2 gives 2NH3, ratio is 1:3:2। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2, यानी रेट ऑफ चेंज हम निकाल रहे हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यहाँ पे निकाल रहे हैं हम। तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो N2 है वो मतलब N2 पे कैसे चल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, तो वही जो फॉर्मूला था हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में N2, उसके आगे डेल्टा, चूंकि ये रिएक्टेंट है तो यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगा दिया, अपॉन डेल्टा T, ये T सॉरी, हाँ ये डेल्टा T, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2। उसी तरीके से अगर हम लिखते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, तो H2 का क्या हो जाएगा, सेम माइनस वो भी आएगा, क्यों, क्योंकि वो क्या है, रिएक्टेंट है। तो इस तरह से लगा के हमने डेल्टा T कर दिया। लेकिन अगर मुझे इन दोनों का रिलेशन बनाना हो, N2 और H2 का, तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि N2 जो फिनिश हो रहा है वो इस तरह से फिनिश हो रहा है कि H2 इज फिनिशिंग एज 3 टाइम्स मोर। ये जो H2 है, जब इसका रिलेशन बनाना हो N2 और H2 का, तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि N2 जो फिनिश हो रहा है वो इस तरह से फिनिश हो रहा है कि H2 इज फिनिशिंग एज 3 टाइम्स मोर। ये जो H2 है, जब इसका एक पार्ट खत्म होता है, इसका 1 पार्ट खत्म होता है, तो इसका 3 पार्ट्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका हम देख रहे हैं कि हमारा जो N2 है इट इज फिनिशिंग, बट H2 इज फिनिशिंग एज 3 टाइम्स मोर देन N2। जब मोर देन N2 लिख रहा है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ H2 इज 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ N2। मतलब जब इसका एक पार्ट खत्म हो रहा है तो H2 का 3 पार्ट्स खत्म हो रहे हैं। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है, स्पीड ऑफ H2 इज 3 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ N2। तो इसको मैंने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे मैंने इसको 3 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इस 3 को मुझे इधर लेके जाना है, ओके, इधर लेके जाना है मुझे, तो मेरा क्या बन जाएगा, ठीक है। तो जिस तरह से मैं उसको जब उधर से लेके आई 3 से, यहाँ पे 3 लिखा था,
ठीक है, यहाँ पे 3 था, इस 3 को जब मैं यहाँ पे लेके आई तो इस तरीके से ये आ गया, इसकी ये जो रेसिप्रोकल हो गया इसका, इस तरह से लिख दिया हमने। तो ये हमने रिलेशन बना लिया। तो अब हमें H2 का पता चल गया और हमें N2 का पता चल गया। N2 मतलब ये है, ये N2 का हमारा आ गया। लेकिन अब मुझे NH3 का भी रिलेशनशिप निकालना है कि NH3 का क्या रिलेशन होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ NH3 क्या होगी, NH3 जो है वो डबल हो। सो फॉर्मेशन ऑफ NH3 कितनी होगी, डबल होगी N2 के, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं। तो वही सेम जो काम अभी हमने पीछे किया था कि जब एक N2 बनेगा तब तक 2 NH3 बन जाएंगे। तो इसका मतलब कि जो फॉर्मेशन ऑफ NH3 है वो हमेशा N2 के डबल है। तो N2 के डबल को इस तरह से हमने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस 2 को जब हम वहाँ लेके जाएंगे तो हम फिर क्या हो जाएगा, हमारा NH3 का हमारा रेट इस तरीके से हो जाएगा। इसको उधर लेके जा रही हूँ तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। नाउ माइनस साइन आई एम नॉट गोइंग टू पुट बिकॉज दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोडक्ट, सो देयर विल बी नो माइनस साइन हियर। और इस तरीके से अब मुझे ये भी पता चल गया है और ये भी पता चल गया। नाउ पुटिंग ऑल द 3 थिंग्स टुगेदर वी विल गेट, तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे N2 का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं था तो 1 लिख लिया हमने। यहाँ पे ऑलरेडी 3 था, यहाँ पे 2 था। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, इसको 1 बाय 1 हम लिखते नहीं है तो हमने यहाँ नहीं लिखा, इसको माइनस का साइन लगा के लिख दिया। ये 3 था तो इसको अभी हमने रेसिप्रोकल में डाल दिया और यहाँ पे 2 था तो इसको भी रेसिप्रोकल में डाल दिया। यहाँ पे प्लस का साइन लगा, मतलब कोई साइन नहीं लगा हुआ है बिकॉज प्रोडक्ट है ये रिएक्टेंट है तो माइनस साइन, ये रिएक्टेंट है तो माइनस साइन। तो अब पैटर्न समझ में आ गया कि जो भी ये स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसको आप रेसिप्रोकल में डाल देना, बस ये आपका पैटर्न बन जाएगा। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। सो लेट्स सी दिस एग्जाम्पल। यहाँ पे आपका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, 4 है और 1 है, मतलब कुछ नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ये चूंकि यहाँ पे आपका रिएक्टेंट है तो इसके आगे माइनस लग जाएगा, ओके। और वही ये 2 जो रेसिप्रोकल में चला जाएगा। यहाँ पे ये 4 था तो ये भी रेसिप्रोकल में आ गया, लेकिन चूंकि प्रोडक्ट है तो कोई साइन नहीं आएगा। ये भी प्रोडक्ट है, उसके आगे कोई नंबर नहीं है तो कोई नंबर हम रेसिप्रोकल में नहीं लगाएंगे। और इस तरीके से नाउ वी आर थ्रू, वी नो हाउ टू राइट द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जो अभी तक हमने पढ़ा था वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन था, मतलब कि कोई 2 टाइम इंटरवल के बीच में आपने निकाला कि क्या रेट ऑफ रिएक्शन चल रहा है, तो वो हो गया हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि नाम बता रहा है इंस्टेंट, अभी के अभी एकदम इसी टाइम पे मुझे देखना है कि क्या चल रहा है। मुझे इससे मतलब नहीं है क्या कंसंट्रेशन है, मुझे इससे मतलब नहीं है कि क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, बस मेरा मतलब क्या है कि बिल्कुल इस टाइम पे, तो उसको मैं क्या बोलूँगी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो एवरेज को इस तरह समझो कि आप बहुत लंबा डिस्टेंस कहीं आपने बड़े चेंज हो रहा है, मतलब आधे घंटे के बाद क्या होगा, तो इस टाइम से इस टाइम इंटरवल के एवरेज होगा। लेकिन अगर इंस्टेंट पूछूं कि अभी मैं आ गई आपके पास और जो रिएक्शन चल रहा है बहुत देर से, मुझे नहीं पता कितनी देर से चल रहा है, और मैं आपसे पूछूं कि अभी बताओ क्या है रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो होगा आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो डेफिनेशन की क्या हो गई, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट or products at a particular instant of time is called instantaneous rate of reaction.